हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th का। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th के चैप्टर 3 ऑफ साइंस। किसका पढ़ेंगे? क्लास 8th का। ओके, सो चैप्टर नेम वाज द कोल एंड पेट्रोलियम। इसके पहले हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप वाला चैप्टर, दूसरा माइक्रो organism. These both are the biology chapter, but in this is a chapter of chemistry. It is a chapter of chemistry. That name was the coal and petroleum. So chapter 3 of the science name was the coal and petroleum of the chapter 3. So let's start this chapter. First, what topic to be covered we will discuss firstly in this chapter. Topics to be covered. First topic is natural resource. What is natural resource, example of natural resource, types of natural resource, और हम लोग पढ़ेंगे fossil fuel. In the natural resource, one thinks more that the fossil fuel. Then coal. फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? Coal, that is very main process. In the coal, we will study about the carbonization, means how coal were formed, uses of coal, and derivatives of coal. So derivatives of coal, it means that the product that product that is made by the coal. Okay, so then third is petroleum. How petroleum will be formed, refining of petroleum, and the extraction of petroleum, how these were done. Then fourth main topic is natural gas. In the natural gas, we will study about forms of natural gas and uses of natural gas. Then we will study the conservation. Then we will study about the conservation of fossil fuel. How we can conserve the fossil fuel that is a natural resource. So that's all topic we covered in this single chapter. So one by one we study. Firstly, natural resource. What about natural resource? What is natural resource? So the resource that we obtain from nature, and for that fulfill or that required for our basic need, that resource is known as the natural resource. मीन्स ऐसे रिसोर्स जो कि हमको किससे मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं. इट मीन्स उस नेचर में प्लांट एनिमल भी आएंगे और कुछ नेचर्स गिफ्ट भी रहते हैं. सो ऐसे रिसोर्स जो कि हम लोग नेचर के द्वारा हमें मिलता है और उसकी जरूरत हमें होती है किस लिए? फॉर फुलफिल आवर बेसिक नीड. मेन थिंग इज basic need. So when we talk about anywhere the natural resource, you tell that the resource that we get from the nature and that fulfill our basic need are known as natural resource. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसे रिसोर्स जो कि हमें किससे मिलते हैं? बाय द नेचर, और उन्हें हम किस लिए यूज करते हैं? अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए. सो ऐसे रिसोर्स को ही क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्स. अब there are 3 natural resource. It means the example of natural resource. So
here are the firstly the sun. You can see the sun, then forest, the oil. All the natural resources are our, it means are very important things. If the natural resource will be absent, our I or you, means all over the organism cannot be survived. Okay, so example, when we talk about example of natural resource, so three example will be coming. First will be sun. Here you can see sun. Daily you can see the sun, the structure of sun. Then the forest. Maybe maybe of you rare have you seen the forest? But you know what is forest, okay? So fuels. So fuels. Next is the fuels. So first will be sun. You know that the sun. Second will be the forest. You also known as the forest. The forest is a group of many tiny organism, or you can say that it is a place where and flora and fauna, means flora means plant. Extra knowledge na. So flora means plant. If anywhere the flora can be written, you can understood that this is the plant. If in your examination or इन योर क्लासरूम अगर मैम पूछ दें कि फ्लोरा क्या होता है तो आप प्लांट बताएंगे, और अगर पूछ ली कि फोना क्या होता है तो आप किसको बताएंगे? एनिमल को बताएंगे. किसको बताएंगे? एनिमल को बताएंगे. किसको बताएंगे? एनिमल. सो ये थ्री हम लोग के क्या हो गए? ये थ्री क्या हो गए हम लोग के? नेचुरल रिसोर्स. क्या हो गए? नेचुरल resource, sun, forest and fuel. But in this chapter we will study about the fuels and some little bit concept about other things. So let's move further. Okay, so then types of natural resource. Types of natural resource. There are two types of natural resource. First will be the exhaustible natural resource and second will be the inexhaustible natural resource. Firstly, you can recall the name exhaustible natural resource and inexhaustible natural resource. What is exhaustible natural resource? The natural resource that are likely to be exhausted by human activities. One second. By human activities are called exhausted natural resource. इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे नेचुरल रिसोर्स मींस ऐसे नेचुरल रिसोर्स की बात हो रही है. यहाँ पे मैन मेड रिसोर्स अभी आता मींस मैन मेड रिसोर्स भी होता है, बट यहाँ पे किसकी बात आ रही है? नेचुरल रिसोर्स की. सो ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा खत्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और एक बार अगर वो खत्म हो गए तो दोबारा नहीं बनेंगे, या फिर बनेंगे तो उन्हें 100 millions of year लग जाएंगे. This is a very long time of about the 100 millions of year. What about 100 millions of year? So when we talk about that, this can take the 100 millions of year. Okay, this can take the 100 millions of year. So exhaustible natural resource is the resource that are likely to be exhausted by the human activities are called the exhaustible natural resource. It means ऐसे natural resource जो कि human activities के द्वारा खत्म हो जाएंगे उन्हें क्या कहते हैं? exhaustible natural resource. As simple, ठीक, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे. Okay, then when we talk about example of fossil means example of exhaustible natural resource. So fossil fuel are the first example, then forest, then mineral. They are the exhaustible natural resource. It means by the human activities they were likely to be the exhausted. Then we will talk about inexhaustible natural resource.
What is inexhaustible natural resource? So, natural resources that are not likely to be exhausted by human activities are known as the inexhaustible natural resource. For example, the sunlight, air, etc. means just exhaustible natural resource का opposite. It means कि अगर इसमें वो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होते क्या है, ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो कि कभी खत्म नहीं होंगे ह्यूमन एक्टिविटीज से, और या फिर कोई एक्टिविटीज से वो कभी खत्म नहीं होंगे, उन्हें क्या कहते हैं, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। बहुत सिंपल, ऐसे रिसोर्स जो कि एग्जॉस्ट या फिर खत्म नहीं होंगे बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, उन्हें क्या कहेंगे, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो सनलाइट और एयर 1 millisecond में, 1 second में, 1 minute में, 1 hour, every time the air will be present. And when we talk about the sunlight, if the air is absent, we cannot live, because by the air, in the air the oxygen is present and we can intake the oxygen. So sunlight, you can get sunlight from sun rays and use many things, such as to run vehicle, to use means to use as electricity, and many other things you can do with the sunlight. So these is the types of natural source. Then the fossil fuel. Fossil fuel. Fossil fuel. 1 second. Fossil fuel एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। रिसेंटली अभी अभी आपने क्या पढ़ा कि फॉसिल फ्यूल का है एक एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्स है। एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्स समझ में आ गया, तो अब फॉसिल फ्यूल की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो दीज आर फ्यूल्स दैट आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट एंड आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल। व्हाट इज फॉसिल फ्यूल? So the fossil fuel is a fuel, means that fuel that is present in the earth crust layer. It means कि ऐसे फ्यूल जो कि कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, अर्थ के क्रस्ट लेयर में, और वो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स से बनते हैं। ऐसे ही फ्यूल को क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल। मीन्स ऐसे फ्यूल जो कि अर्थ के क्रस्ट लेयर पे प्रेजेंट है और वो डेड रिमेन्स, डेड वेजिटेशन से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं फॉसिल फ्यूल। और नेक्स्ट पॉइंट, दीज फ्यूल्स आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। These fuel is also known as the fossil fuel is also used as the source of energy. Means source of energy. Source of energy, you can see here. Okay, the source of energy means the fossil fuel. 1 second, the fossil fuel is also used as the source of energy, so in from this point एक आंसर की एक मीन्स एक क्वेश्चन के आंसर आपको और मिलेंगे। अगर कहीं पूछा व्हाट इज द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, तो आप सबसे पहले पॉइंट, एक मेजर पॉइंट लिखेंगे, इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सो अगर कहीं पूछा गया यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, तो आप लिखेंगे इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सो वी कैन क्लियर व्हाट इज fossil fuel. Okay, what is fossil fuel, and another point we can discuss. Then the example of 1 second, then the example of fossil fuel. What is the example? So first example is coal. Second example will be the petroleum. And third will be the natural gas. All these three fossil fuel we can study in this chapter one by one. Example of fossil fuel will be coal, petroleum and natural gas. Okay, then
Main topic is the coal. Main topic is the coal. Okay. Main topic will be the coal. Okay. So what is coal? Firstly, tell me what is coal. Coal is a hard black substance that is present on the earth. It means its property will be it is black, hard black and solid. Hard black and solid. Hard black and solid. So these three properties of the coal, that when anywhere you can ask that what is coal, you can give the answer. Coal is a hard black solid substance that is present on the earth. Okay. So ऐसे substance means कोल एक ऐसे substance है जो कि बहुत hard है, black है और सॉलिड फॉर्म में है, उसे क्या कहते हैं, और वो अर्थ पे प्रेजेंट है, यही कोल है. मींस कोल की प्रॉपर्टी पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे इट इज अ हार्ड, इट इज अ ब्लैक, इट इज अ सॉलिड, मैनी अदर थिंग्स. ओके. सो then we talk about the carbonization. Then you say, अब आप पूछेंगे कि कार्बनाइजेशन क्या होता है. तो एक सिंपल अगर लैंग्वेज में कहें तो कार्बनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, कार्बनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जिससे मींस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोल जो है वो फॉर्म्ड होता है. कोल जो है वो क्या होता है, फॉर्म्ड होता है. सो अब देखते हैं कोल फॉर्म्ड होता कैसे है. ओके. आपको पता चल गया. मींस carbonization is the process, means the process by which the coal will be formed. Okay. First will be the over millions of year natural process occurred or led to burying of vegetation under the soil. The dead vegetation got compressed as more soil and deposited over it. Then next, under high pressure and temperature and over a long period of time, dead remains converted to coal. अब देखिए इस कार्बनाइजेशन प्रोसेस में होता क्या है. बहुत मीन्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कुछ एक नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल प्रोसेस अकर हुआ और उससे क्या हुए, जो वेजिटेशन थे, जो मीन्स जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स थे, और यू कैन से द प्लांट्स एंड एनिमल means living or dead, they can buried and mix with the soil. They can buried means they can goes inside, means they can mix with the soil and goes deep into the soil. Okay. And then the first process is millions of years पहले क्या हुआ था, कुछ नेचुरल फिनोमिना आया था जिसके कारण क्या हुआ था, जो डेड वेजिटेशन मीन डेड प्लांट एनिमल और प्लांट्स एंड एनिमल यू कैन से, वो क्या हुए थे, मिट्टी के अंदर मींस इनसाइड द सॉइल वो दब गए. इट मींस और फिर क्या होता है, फिर वो जो डेड वेजिटेशन थे वो सॉइल में बस गए, वो सॉइल में क्या करने लग गए, वो सॉइल में मिक्स्ड होते गए, वो सॉइल में डिपॉजिट होते गए, और वो एज जब ज्यादा होने लगे तो वो मीन सॉइल से साथ वो कंप्रेस्ड होते गए. 100 मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले नेचुरल फिनोमिना आया था जिसके कारण जो डेड वेजिटेशन थे, प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, वो सब क्या हो गए, मिट्टी के अंदर दब गए. फिर क्या होता है, जो डेड, अब वो मिट्टी के अंदर दब जाए तो सांस नहीं ले सकते तो वो डेड हो जाएंगे. मीन्स अब हम लोग क्या कहेंगे, डेड वेजिटेशन. तो जो डेड वेजिटेशन थे वो क्या किए, मीन्स जो डेड वेजिटेशन थे वो सॉइल के साथ मीन्स दबते गए, कंप्रेस होते गए और डिपॉजिट होते गए सॉइल में. देन जब नेचुरल डिजास्टर, कुछ नेचुरल फिनोमिना आया, कुछ नेचुरल डिजास्टर आया,
तो उससे क्या होता है, और टेम्परेचर जो है बहुत हाई गया, बहुत लो हुआ, प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ, अर्थक्वेक आया, वोल्केनो आया, साइक्लोन आया। सो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे तीसरे पॉइंट की, जिसमें बहुत सारे टेम्परेचर मीन्स बहुत हाई टेम्परेचर पे, बहुत हाई प्रेशर पे, बाय द कुछ नेचुरल डिजास्टर से वो क्या हुए, वो ही कन्वर्ट हो गए। द डेड वेजिटेशन दैट विल बी compressed, that will be goes inside the soil, had converted wind into the coal. Was means converted to the dead vegetation into the coal, into the coal. बहुत समय तक वैसे डिजास्टर आता रहा, टेम्परेचर लो होता गया, डाउन होता गया, प्रेशर बढ़ता गया और घटता गया। तो वही डेड वेजिटेशन जो है बहुत समय बाद किसमें चेंज हो गए, कोल में। किसमें चेंज हो गए, कोल में। सो दिस इज अ प्रोसेस बाय विच the coal is formed. If anywhere you can ask you that what is means how coal were formed. So first point you can retain, आप पहला point ये लिखेंगे कि by the process means coal is formed by the process of carbonization. Then you can describe the carbonization is that and that process. So then you can describe the carbonization. So next topic is the uses of coal. What is the uses of coal in our life? What is the uses of where the coal was used? Firstly, you can say that in the steam engine, in the cooking, and in the power plants, in the industries, and you can I also say the steam engine and cooking. So these four places where the coal is used. So if you in examination the teacher asks you what is the uses of coal, you can state the coal is used in the power plant, cooking, and industries and steam engines. So this is the uses of coal. Then derivatives of coal. Then derivatives of coal. What is the derivatives? Derivatives means the product that will be formed by the coal. Okay. So there are three derivatives. First, second, third. First will be coke. First will be the coke. Second will be the coal tar. 1 second. Coal tar. Okay. Then next will be the coal gas. Okay. So these three derivatives of the coal. First coke, second coal tar, third coal gas. So one by one we will discuss each. First will be discuss about the coke. First will be discuss about the coke. So it is the tough, porous and black substance. It is the purest form of carbon. So यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी निकल के आती है कि ये क्या है, ये बहुत टफ होता है, बहुत मीन्स बहुत हार्ड होता है, टफ मीन्स हार्ड, एंड पोरस होता है मीन्स इसमें सम कुछ पोर रहते हैं, और ये ब्लैक कलर का होता है, और ये ऑलमोस्ट द प्योर कार्बन मीन्स प्योर कार्बन होता है। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कोल में क्या रहता है, कार्बन रहते हैं। और जब कोक फॉर्म होता है तो कोक कभी भी प्यूरेस्ट फॉर्म होगा, ध्यान रखिएगा। कोक इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, नॉट कोल। ये कोल का प्यूरेस्ट फॉर्म नहीं है, ये कार्बन का प्यूरेस्ट फॉर्म है, और इट कंटेन द 98% ऑफ अबाउट कार्बन। It contains the 98% of carbon. It is the tough, porous and black substance. It is a tough, porous and black substance. It is the purest form of carbon, not coal, carbon. Okay. It contains 98% of carbon. Then when we talk about the uses of coke, that it uses in the steel production. 1 second. It is used in the steel production. Okay. Then it is used in the metal industry. These two places where the coke means the purest form of carbon. It is a thick black liquid with an unpleasant smell. Okay. So, and it is a mixture of
Carbon carbonaceous substance. Carbonaceous substance. Carbonaceous substance. It is a mixture of carbonaceous substance. It is a thick black liquid. It has a very unpleasant smell. Then it is used in the paints. It is used in the paints. Then it is used in the explosive, means in the sometime in the gunpowder. Okay, paints and in the roads. You can, if many of you see a thick black liquid, that is when the road was made, the thick black liquid uh, will be means by the thick black liquid the road will be formed, और that has very unpleasant smell, means बहुत गंदा महकता है वो, ठीक है। और वो क्या करता है, जब आप रोड बनाते तो उसका यूज होता है कोल तार का। तो आप कहीं भी देखें अगर रोड बन रहा है तो एक थिक ब्लैक लिक्विड मीन्स तुरंत का बन रहा है, बहुत पहले नहीं बना, तुरंत। सो जो कोल तार ही यूज होता है, ठीक है, कोल तार ही यूज होता है। सो next, our main topic is the petroleum. Our main topic is the petroleum. You can, any of you hear that petroleum or know about is a petroleum is made up of two words. First will be the petra, second will be the oleum. First will be the petra, second will be the oleum. Petra means rock, oleum means oil. Petra means rock and oleum means oil. So rock oil is known as petroleum. So you can also written in your examination that petroleum is also known as the rock oil. पेट्रोलियम क्या है, दो वर्ड से बना है, पेट्रा ओलियम। पेट्रा मीन्स क्या होता है, रॉक होता है, पत्थर, ठीक है। ओलियम मीन्स ऑयल मीन्स तेल, ठीक है। सो इसको हम लोग एक और मीन्स एक और नाम मीन्स इसका एक अदर नेम भी है पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉक ऑयल, ओके। सो इट इज डार्क ऑयली लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर। अब ये क्या होता है, ये भी ऐसा कोल तार की तरह होता है, मीन्स कोल तार की तरह नहीं होता, कोल तार से बहुत अलग है, बट मैं बता रही हूँ उसकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम है। क्या ये क्या है, ये थिक ब्लैक लिक्विड है, मीन्स इट इज ऑल्सो इन द लिक्विड फॉर्म। यू कैन नो दैट इन द व्हीकल द पेट्रोल, मतलब सब कहते हैं ना कि मीन्स इन द व्हीकल द पेट्रोल डज नॉट हैव, आई हैव नॉट नो पेट्रोल इन माई व्हीकल, ऐसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। सो ऐसे कहते हैं। So it is a dark liquid, it is a thick dark liquid, it is formed in the liquid, means liquid states. You can know about states of matter. So it is formed in the liquid state with an unpleasant odor. Then you can say what is odor. So odor, not order means वो एक और ऑर्डर होता है ना ये वाला ORDER, ये ऑर्डर नहीं, यहाँ पे OD ऑर्डर, इसका मतलब ऑल्सो, इसका मतलब भी स्मेल ही होता है। ऑर्डर मीन्स ऑल्सो अ स्मेल, ऑल्सो अ स्मेल, इसका मतलब भी स्मेल होता है। सो formation of petrol, then we move to the formation of petrol, that how the petroleum will be the formed. Okay, so first will be the formed from the remains of organism that got buried under seabed millions of years ago, formed due to the enormous pressure and temperature in the absence of oxygen. अब देखिए इससे दो पॉइंट निकल के आता है, ये ऑर्गेनिज्म के रिमेन से ये बनता है, ये ऑर्गेनिज्म के रिमेन से ये बनता है, और जो कि मिलियंस ऑफ इयर्स पहले दब गए हैं, मींस सॉइल के अंदर या फिर सी के एकदम अंदर चले गए हैं, दब गए हैं, उन्हीं से ये फॉर्म्ड होता है, डेड मींस डेड ऑर्गेनिज्म से। और एक और पॉइंट है कि ये किससे मींस ये इनॉर्मस टेम्परेचर, मींस बहुत ज्यादा जब टेम्परेचर रहेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा तब ये फॉर्म होता है, लेकिन वहां पे ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंस होना चाहिए। ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही पेट्रोलियम जो है फॉर्म होता है। ये किससे फॉर्म होता है, इनॉर्मस टेम्परेचर से। इनॉर्मस मींस बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर जब रहेगा, और in the absence of oxygen,
So these 2 points that you can written in the formation of petroleum. They will ये क्या है, कैसे पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, एक बार फिर देख लेते हैं। ये क्या कैसे फॉर्म होता है, ये ऑर्गेनिज्म के रिमेन से ये बनता है जो कि सी बेड के अंदर एकदम सॉइल के अंदर दब गए हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, मींस एज अ फॉसिल फ्यूल। तो आप जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल में आता है, तो इसका भी फॉर्मेशन जो है वैसे ही होगा। और फिर ये फॉर्म्ड और इनॉर्मस टेम्परेचर, बहुत ज्यादा जब टेम्परेचर रहता है, बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, और तब ये फॉर्म होता है। और अ मेन पॉइंट अबाउट पेट्रोलियम, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द पेट्रोलियम विल बी द फॉर्म्ड। ओके, then the extraction of petroleum, how petroleum is extract, the dead vegetation will be inside the soil or inside the sea, means inside the sea na, so the petroleum is also formed inside the soil or inside the sea, where the dead vegetation will be occur. So how we can extract the petroleum and use it as a to running the vacuum? So ड्रिलर पाइपलाइन लोअर्ड इनटू द अर्थ, सबसे पहले क्या किया जाता है, कोई ड्रिल्ड मशीन या फिर कोई ड्रिल्ड और पाइपलाइन एकदम अर्थ के एकदम अंदर भेजी जाती है। फिर ड्रिलिंग पाइप इज लोअर्ड, 1 सेकेंड, ड्रिलिंग पाइप इज लोअर्ड एंड इट ड्रिल्स इन फर्दर। अब क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 इमेज दिया गया है, इन दोनों जगह क्या हो रहा है, पेट्रोलियम जो है वो निकाला जा रहा है। फिर ड्रिलिंग पाइप रीचेस द डिपॉजिट एंड पंप्स आउट द सॉयल। ओके, सो अब ये क्या है, देखिए एक कोई ड्रिल पाइपलाइन, ड्रिल मशीन और उसके पाइपलाइन जो है वो अर्थ में एकदम जाती है, और वो जाते जाते अर्थ के एकदम मतलब जाते जाती है और एकदम डिपॉजिट जहाँ पे पेट्रोलियम जो है वो फॉर्म्ड हुआ है वहां पहुंच जाती है। और फिर बाय द ड्रिलिंग मशीन, बाय द ड्रिल और पाइपलाइन वो क्या करते हैं, ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ऑयल को निकाल लेते हैं। समझ में आया, कोई ड्रिल मीन्स कोई ड्रिल और पाइपलाइन जाती है इन द अदर और मीन्स इन द इनसाइड द अर्थ, इन द अर्थ, और वो मीन्स और वो क्या करती है, वो एकदम जाती रहती है और वो एकदम जब नीचे जहाँ पे डिपॉजिट हुआ है, जहाँ पे पेट्रोलियम फॉर्म्ड हुआ है वहां पे जब चली जाती है तब वहां से ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक पॉइंट और है, पेट्रोलियम विल कैन बी फाउंड, petroleum well can be found both on land and sea and ocean. This is very main point. It means the petroleum well means जहाँ पे पेट्रोलियम प्रेजेंट होगा, जहाँ पे पेट्रोलियम जो है बना होगा, वहां पे क्या होता है, वो या लैंड में भी हो सकता है, सी में भी हो सकता है, ओशन में भी हो सकता है, बिकॉज मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले किसी को क्या पता वहां पे सी ही हो, वहां पे लैंड भी हो सकता था, तो उसके अंदर सॉइल भी हो सकता था, तो उसके अंदर डेड वेजिटेशन जो है वो डिपॉजिट हो सकते थे। फिर अगर वो सी बन गया तो सी के अंदर भी वो पाए जा सकते हैं, ओशियन के अंदर भी पाए जा सकते हैं, और क्या पता कई सारे वेजिटेशन ओशियन के अंदर दब गए हों। ओके, so this is a process of how we can extract the petroleum. Then refining of petroleum, then the refining of petroleum, how मीन्स जैसे हम लोग निकालते हैं, मीन्स अगर हम लोग जैसे लैंड से निकालते हैं और द ओशियन से, सी से जैसे निकालते हैं वैसे हम लोग यूज नहीं करने देते, यूज नहीं करने लगते हैं, उसको पहले रिफाइन करते हैं, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। अब एक प्रोसेस है रिफाइनिंग, ये कैसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे थिंग्स, बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स जो है पेट्रोलियम से अलग किए जाते हैं, ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिफाइनिंग। ओके, रिफाइनिंग। ओके, सो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम मींस जब पेट्रोलियम जब रिफाइन होता है तो कौन कौन से उसमें वो निकलते हैं। सो सबसे पहला निकलता है पेट्रोल, इसका यूज कहाँ है, मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, मींस इसका उपयोग पेट्रोल एज अ डीजल एज अ फ्यूल हम लोग करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट विल बी द केरोसिन, फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प, जेट्स। अब इससे क्या कहते हैं,
ये भी एक फ्यूल है, केरोसिन इज आल्सो फ्यूल। और इसको कहाँ यूज करते हैं हम लोग, स्टोव्स में, मींस व्हेन द कुकिंग, व्हेन द वी कुक फूड वी नीड स्टोव्स, उसमें करते केरोसिन, और जेट्स में, ठीक, जेट्स में और लैम्प्स में, ओके। देन डीजल, डीजल आल्सो फ्यूल, डीजल फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल। बट यहाँ पे डीजल और पेट्रोल में फर्क ये है, बस इतना फर्क है कि पेट्रोल जो है वो लाइट व्हीकल के लिए यूज होता है बस, बट जो डीजल जो है वो ट्रक और या फिर बहुत सारी भारी भारी गाड़ियां, मींस जो हैवी व्हीकल होती हैं उनमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो इट इज यूज्ड इन द हैवी मोटर व्हीकल, ओके। देन lubricating oil, then the lubricating oil। सो लुब्रिकेटिंग ऑयल से क्या बनता है, लुब्रिकेशन बनता है, क्या बनता है, लुब्रिकेशन। देन द पैराफिन वैक्स से क्या बनता है, पैराफिन वैक्स से बनता है ऑइंटमेंट्स, कैंडल, वैसलीन। आपको पता है जो आप वैसलीन लगाते हैं इन द विंटर, आप जो वैसलीन लगाते हैं वो किससे बनता है, पैराफिन वैक्स, और जो क्या है कंस्टिट्यूएंट्स किसका है, पेट्रोलियम का, ओके। सो पैराफिन वैक्स से कैंडल फॉर्म होता है, ऑइंटमेंट्स फॉर्म होता है, वैसलीन फॉर्म होता है। देन बिटुमेन इज आल्सो अ प्रोडक्ट, आल्सो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। पेंट्स रोड सरफेसिंग, रोड्स को जो हम सरफेस करते हैं, रोड्स को मतलब एक से मींस एक एकदम प्रॉपरली सरफेस करते हैं, उसका मींस उसमें किसका यूज होता है, बिटुमेन का, ठीक है, बिटुमेन का, और पेंट्स में भी इसको डाला जाता है। देन पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, इसका क्या यूज है। अब लास्ट कंस्टिट्यूएंट है पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म। अब एक आखिरी कंस्टिट्यूएंट जो कि है पेट्रोलियम गैस लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में आप कभी सोच सकते हैं कि गैस निकलता है, बट नहीं निकलता है, ओके। सो इन एलपीजी, जिसको हम लोग कहते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये क्या है, ये पेट्रोलियम ऑयल है, पेट्रोलियम गैस है, बट इन द लिक्विड फॉर्म। जब इसको ज्यादा कंप्रेस किया जाता है तो ये किस में हो जाता है, गैस फॉर्म में। फ्यूल्स फ्रॉम होम एंड इंडस्ट्री, और ये भी फ्यूल है, ये होम में यूज होता है और इंडस्ट्री में यूज होता है। So these were the refining of petroleum. You can understand constituents of petroleum and its uses. Then a very important things that we study, that the petrochemical, many of you confused in this, what is petrochemical, a very important things, what is petrochemical, petrochemical, you can see here petrochemical. So what is petrochemical? So very simple, the chemical that is formed or that is released when the refining of petroleum will be done. It means when the refining of जब पेट्रोल की जो रिफाइंड होता है तभी ये जो है पेट्रोकेमिकल, एक ऐसा केमिकल जो कि कब फॉर्म्ड होता है, जब फ्यूल मींस जब पेट्रोलियम जो है वो रिफाइन होता रहता है। तो बहुत सिंपल एक नोट जैसा है, व्हाट इज पेट्रोकेमिकल, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ये लिखेंगे, द केमिकल दैट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। सो नेक्स्ट टॉपिक इज आवर natural gas. Natural gas, what is natural gas? So it is formed from the remains of organism that are got buried under seabed millions of years ago, generally found trapped between the impervious rock along with petroleum. अब ये क्या होता है, ये भी एक फॉसिल फ्यूल है, एज अ फॉसिल फ्यूल ये भी फॉर्म होता है, क्या, मिलियंस ऑफ इयर्स पहले ये भी डेड वेजिटेशन सॉइल के अंदर दब गए थे, उसी से नेचुरल गैस भी फॉर्म्ड होता है। इट मींस इट इज आल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक याद करेंगे पेट्रोलियम का या फिर नेचुरल गैस का या फिर कोल का, तो आप तीनों का लिख लेंगे, ठीक है। सो किसी एक का याद करेंगे एग्जाम में तो तीनों का लिख लेंगे, एज सिंपल तीनों है, क्योंकि तीनों जो है वो एक कैटेगरी में आते हैं जिसको कहते हैं फॉसिल फ्यूल। क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल। सो forms of natural gas, आप ये समझ गए कि कैसे फॉर्म होता है।
ये जब बहुत डेड वेजिटेशन, डेड ऑर्गेनिज्म जब सी के अंदर चले जाते हैं, जब लैंड के अंदर अंदर द सॉइल चले जाते हैं, तब इससे नेचुरल गैस फॉर्म्ड होता है ऐसे। और ये ज्यादातर बिटवीन इम्परवियस रॉक अलोंग विथ पेट्रोलियम, जब पेट्रोलियम निकाला जाता है तो लगभग ये उसी के साथ निकलता है। ओके, देन फॉर्म्स ऑफ नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस इज कन्वर्टेड इन टू फॉर्म्स ऑफ यूजेस। It can be used in two forms of, it can be one second, it can be means it can be done or it can be used in the two forms. First form is the compressed natural gas, means CNG. In the vehicle, modern time, in the vehicle the CNG is also used. Then liquefied natural gas, okay, CNG or LNG. So one by one study both. First, it has low cost of production. It has low cost of production and it has more cost of production. पहला डिफरेंस ये है कि जो CNG है उसका प्रोडक्शन कम है, बट जो LNG है उसका प्रोडक्शन ज्यादा है. It can be transported through pipeline, trucks and ships. It can be transported through trucks and ships. अब दोनों में ये भी एक कॉमन बात है कि जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है वो भी किससे जाता है, वो भी किससे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रक से, शिप से और पाइपलाइन से. और जो लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम नेचुरल गैस रहता है, सॉरी लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस, वो भी किससे फॉर्म्ड होता है, ट्रक मींस वो भी किससे ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रक और शिप से. Then third point is it is used in fuel in light vehicle, it is fuel in heavy vehicle. अब अगर किसी लाइट व्हीकल में चलाना है तो सीएनजी वहां यूज करते हैं. ट्रक में सीएनजी नहीं डलता, मींस ट्रक में या तो डीजल डलेगा, एलएनजी, क्योंकि एलएनजी ठीक है. बट ट्रक में कभी ये नहीं सुनेंगे पेट्रोल डल रहा है और या फिर सीएनजी डल रहा है, कभी नहीं, कभी हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि ये जो सीएनजी होता है वो लाइट व्हीकल को चलाने के लिए होता है, बल्कि जबकि जो एलएनजी होता है वो हैवी मोटर व्हीकल को चलाने में हेल्प करता है और चलाने में यूज होता है. ओके, देन we will talk about other use of natural gas. So uses of natural gas, other electricity generation and cooking food. You can also see the other use. Once again, the natural gas is also used in the other form. The first will be the electricity generation, second will be the cooking fuel. सेकेंड इज द कुकिंग फ्यूल. पहला वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए यूज किया जाता है, दूसरा वो फॉसिल फ्यूल के लिए यूज किया जाता है. देन conservation of fossil fuel. How we can conserve the fossil fuel? Because fossil fuel is the exhaustible natural resource. अगर ये एक बार खत्म हो गया तो दोबारा ये नहीं बन पाएगा, मींस दोबारा बनने में बन भी जाएगा तो बहुत टाइम ले लेगा, और तब तक तो ये कि अर्थ ही डिस्ट्रॉय, मींस अगर ये कह सकते हैं कि कलयुग, अभी कहते हैं ना 4 युग है, तो मे भी कलयुग खत्म हो जाएगा, बट इसको हम लोग को बचा के रखना है, इतना हम लोग जानते हैं कि इसको एग्जॉस्ट नहीं होने देना. 100 मिलियन मींस अगर 100 मिलियन ईयर कौन इंतजार करेगा हम लोग से, तो मींस हम लोग फॉसिल फ्यूल इतना यूज करते हैं, इधर जाना है उधर जाना है, पेट्रोल यूज कर लिए, डीजल यूज कर लिए, सॉरी हाँ पेट्रोल यूज कर लिए, डीजल यूज कर लिए, कोल किसी के लिए यूज कर लिए, किसी पेट्रोल यूज कर लिए. बट जब अगर मान लीजिए इसी समय तो खत्म हो जाता, मींस आपके जो एंशियंट टाइम के जो पीपल है वो बचा वो कंजर्व करके रखें तभी ना बचा, नहीं तो अगर ये खत्म हो जाता तो इतना सोचिए कि आज आप लोग चलते किससे, और अगर चल भी जाते, 1 सेकेंड, अगर चल भी जाते तो किससे. बट आपको कोल पेट्रोलियम नहीं दिखता एज जैसे आप अभी पढ़ते हैं कि डायनासोर क्या थे, एक बहुत बड़े एनिमल थे, बस इतना करके किसी बुक में रखा रहेगा कि कोल क्या था, एक हार्ड सब्सटेंस था और इसका यूज बहुत अच्छा था, ये एज ए कम्पेयर टू सीएनजी एलपीजी जो कि उस समय यूज हो रहा होगा, इस समय मतलब यूज होता. सो आपको भी अपने मीन्स मॉडर्न पीपल के लिए मॉडर्न टाइम के साथ साथ आपको भी इसको कंजर्व करना. तो कैसे कंजर्व करेंगे? First will be the switching of engines at traffic signals.
हम लोग ने बहुत लोग को देखा है ना, अगर मान लीजिए कहीं ट्रैफिक सिग्नल बचा और या फिर कोई ट्रैफिक पुलिस है, अगर वो आपको रोक दिया तो इंजन चला के रखे, तब तक पेट्रोल जो वो यूज हो रहा है, पेट्रोल खत्म हो रहा है, तो आपको इंजन ऑफ कर देना है। जहां पे ट्रैफिक लाइट मींस जहां पे आपको रुकना पड़े वहां पे इंजन ऑफ कर देना है। बहुत लोग को देखे हैं कि अगर मान लीजिए ट्रैफिक लाइट रेड है तो नहीं जाना है, ट्रैफिक पुलिस भी मना कर दिया अगर है ट्रैफिक पुलिस तो। बहुत लोग इंजन चला के रखते हैं कि जब तक जाएंगे कौन फिर से स्टार्ट। बट इससे क्या होता है, इससे जो फॉसिल फ्यूल खत्म होता है मीन्स, तो क्या करना है, पहला कंजर्वेशन, स्विच ऑफ द इंजन एट द ट्रैफिक सिग्नल, जहां पे आपको रुकना हो वहां पे इंजन ऑफ कर दीजिए। क्या है, 2 मिनट लगेगा चलाने। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, रोज क्या करना है हम लोग को, व्हीकल की मेंटेनेंस करना है। व्हीकल का सब मीन्स एक रोज मेंटेनेंस अगर करवाना है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कर मतलब बहुत रेयर लोग कर पाते हैं, बट जो नहीं कर पाते वो करवाते, तो आप लोग को करवाना चाहिए अगर फॉसिल फ्यूल को कंजर्व करना है तो, और कंजर्व करना है क्योंकि फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ओके, using alternative energy source, ज्यादा से ज्यादा हम लोग को उसका यूज कम करना है मींस एज अ, अभी देखिए इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्स का यूज करना है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग एक कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कोल से भी तो प्रोड्यूस करते हैं ना, सो कोल वाली इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोल वाली इलेक्ट्रिसिटी ना यूज करके हम सोलर पैनल वाली इलेक्ट्रिसिटी अगर यूज करें तो कोल सेव होगा, मींस फॉसिल फ्यूल सेव होगा। ठीक, ये एक और कंजर्वेशन हो गया। देन यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हम बहुत लोग को देखे हैं, मींस आप लोग भी देखे होंगे कि बस जा रही है बट जाएंगे हम अपने व्हीकल से, ओन व्हीकल आएगी, बट नहीं किसी पब्लिक व्हीकल जा रही है उतना दूर। मींस अगर मान लीजिए आपको जौनपुर से लखनऊ जाना है और वो भी बस भी जौनपुर से लखनऊ ही जा रही है, मान लीजिए अगर ऐसा है तो आप क्या करेंगे, मींस अगर ऐसा है तो आप, लेकिन आपको तब उस बस पे जाना चाहिए, बस से जाना चाहिए, आप उससे जाते हैं, फ्यूल लगता है, मनी लगता है, दोनों में मनी लगता है। हम नहीं कहते किसमें कम लगता है किसमें ज्यादा, पर दोनों में लगता है, इतना पता है कि दोनों में लगता है। तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका वो खुद जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जब वो खत्म ही कर रहा है, जब वो कोल का यूज कर रहा है और वहां पे मीन्स स्पेस है इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो आप उससे जाइए। आप खुद के गाड़ी से आप अकेले जाएंगे, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कितनी पब्लिक जाएगी। ओके, सो आप जा सकते हैं उससे। इससे क्या होगा, 1 सेकेंड, इससे क्या होगा, फॉसिल फ्यूल कंजर्व होगा। सो दीज 1 सेकेंड, these 4 points that is used to in your examination, well, in your examination when it will be talked, so you can write these 4 points. Okay, then we can complete the whole chapter. 1 second, we can complete the whole chapter and complete the whole chapter. Very simple chapter, very interesting chapter, बहुत इजी से बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े हम लोग, ऐसे ही बहुत वीडियोस आएंगे। एक बार माइंड मैप रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग नेचुरल रिसोर्स पढ़े, नेचुरल रिसोर्स के टाइप्स पढ़े, एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल। फिर फॉसिल फ्यूल में क्या आया, कोल आया, फॉसिल फ्यूल की एग्जांपल ही तो है कोल, कोल आया, पेट्रोलियम आया, नेचुरल गैस आया, और एक और टॉपिक आया जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। और फिर कोल में 3 पॉइंट्स है। पहला तो कार्बनाइजेशन प्रोसेस बाय विच द कोल इज फॉर्म्ड, देन यूजेज और डेरिवेटिव्स मींस कोल तार, कोल गैस, कोक। ओके, देन व्हेन पेट्रोलियम में क्या आया, एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग, कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और रिफाइन करते हैं, किसको, पेट्रोलियम को। फिर नेचुरल गैस में डेरिवेटिव्स मींस उससे क्या डेरिवेटिव्स है, मिड में सीएनजी एंड एलएनजी, और उसके यूजेस क्या है। सो दीज आर द माइंड मैप एंड दीज आर द कॉन्सेप्ट दैट वी स्टडी इन दिस चैप्टर। 1 second. So if you can want to take a screenshot of this mind map, you can take the screenshot. Okay,
of this chapter, the whole concept will be in the mind map. So maybe you can done the screenshot. So bye bye guys. If you want to gain some video more in the Avril Arabic classes on the Avril Arabic classes channel, means Avril Arabic channel, so you you can subscribe the channel and get all the notification of the video. So bye bye guys.